दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, and this is the part 1 of this video. So let us enjoy this video for the chapter 7 of class 7 means triangles and its properties. So enjoy the video. Let us start. First one, I want to tell you that about the medians of a triangle. Yes, what do you mean by medians? A median connects a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite sides. Then that is known as medians, and there are three medians in a triangle. So you can say here these three medians are in this triangle. Let this is a triangle ABC, in which we can see that this is the first median and the name of this median is AD because D is the midpoint of BC. After that, this is the next median, that is you can see that BE. So BE the second median of this triangle, and here E is the midpoint of AC. After that, next one you can see that in the diagram, this is the third median and the name of this median is CF. So we can say that there are three medians and where F is the midpoint of AB. Okay, and we can say that their maximum medians of a triangle have only 3. And these three medians just you can say that connect to a vertex and to a middle point of the opposite side. After that, next things that altitude of a triangle. So what do you mean by altitude of triangles? Yes, an altitude has one end point at a vertex of the triangle and the other on the line containing the opposite side. इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ गए होंगे कि वर्टेक्स से स्टार्ट होने वाली लाइन, वर्टेक्स से जाने वाली लाइन जो अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर हो उसको हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड. So there are maximum 3 altitude in a triangle, and you can take any type of triangle and you will get there are 3 altitudes, and these 3 altitudes are, you can see in this diagram, you can see here this is a triangle and the name of triangle is PQ and R. And here is the first altitude. You can say that this is the first altitude, and with joining the point M, which lies on the side, opposite side of the vertex P, that is QR. So PM is the first altitude. After that, you can see the second line here, yes, and the name of this altitude is QN because QN just perpendicular to the opposite side from the vertex Q, that is PR. PR is the opposite side. So QN is the second altitude of this triangle. Now you can say that this is the third altitude and the name of this altitude is LR. Yes, and you can say that this point L just lies on the opposite sides of the vertex R, and the name of the opposite side is PQ, and this LR is just perpendicular on PQ. Therefore this is the third altitude of this triangle. So you can say that there are 3 maximum altitude in a triangle, in any kind of triangle. So here we can say that PM, QN and LR, these are the altitude making the angle 90 degree with its opposite sides from the vertex. Okay dear, thank you.
So first of all, we will know about the triangle and after that its property. So here dear, you know that this is a triangle. This is simple closed figure bounded by. Okay, okay. This is a triangle ABC and here if we take another line in this triangle, just you can say here, this is from vertex A to the middle point of BC, then this line is known as median. Okay, if you join from the vertex of a triangle to the midpoint of just opposite sides, then this line AD is known as median of this triangle. And here you can say that there are three medians. This is the midpoint of AC. So if you join these two, and this is ABE. This is also known as a median of triangle ABC. Similarly, if you join from C to the midpoint of AB, then this is the third median of the triangle ABC. And now this the F is the point on the side AB. So you can easily see that there are three medians in a triangle. Okay, so here the you know about the median. So what do you mean by median of a triangle? So what do you mean by the median? A median connect, you can write the definition of the median. A median connects a vertex of a triangle, yes, to the midpoint of the opposite side. तो यहाँ पे जो मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मीडियन एंड देयर आर थ्री मीडियंस. You can see that there are three medians. Every triangle have three medians. And here medians are, yes dear, in this triangle AD is the median. Yes. So you keep in mind that there are three medians in a triangle. Yes, you can see that this is it. तो आपको याद ये रखना है कि मिड पॉइंट से जो वर्टेक्स लाइन ज्वाइन होती है, वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक जो लाइन ज्वाइन होती है, उसको हम कहते हैं मीडियन. आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग इज एल्टीट्यूड. नेक्स्ट वन इज एल्टीट्यूड of a triangle. So, what do you mean by altitude of a triangle? Yes, you can define it. Let us dear, first of all, we will make another triangle. Just you see here, this is a triangle ABC. And in this triangle, if you join the vertex
perpendicular perpendicular from the vertex means this angle should be 90 degree. Then this AD is known as altitude of a triangle. Similarly, if this line is making angle 90 degree, then this is also known as altitude of this triangle. And after that, this is the F point and this make angle 90 degree. Then these all three lines, that is AD, BE and CF, are known as altitude of a triangle. So there are three altitude. Now how can you define the altitude of a triangle? So you can write the perpendicular, since this line is making angle 90 degree, so this is known as perpendicular. AD is perpendicular to BC. So you can write that perpendicular line segment from a vertex of a triangle to its opposite side is called an altitude. तो अपोजिट साइड से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उसको हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल. एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहां पर आपका ये वर्टेक्स है और इसके अपोजिट साइड है BC, और अगर BC परपेंडिकुलर है, AD perpendicular to BC, then AD is known as altitude. Similarly, if AC is the opposite side of vertex B and BE is perpendicular to AC, ये एंगल 90 डिग्री कंपल्सरी है. अगर ये 90 डिग्री है, then you can say that BE is the altitude. Similarly, if AB is the opposite side of vertex C के अपोजिट में है, आप देखिए AB, और this is making angle 90 degree, that is CF is perpendicular to AB, then CF is also known as altitude of a triangle. So now dear, how many altitude here? Every triangle have three maximum altitude. So you can write here, every triangle have three altitude. That is, name of the altitudes is AD and next one is BE and next one is CF. So these are the altitude of the triangle. ये सभी क्या है? Altitude है. दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा. मिड पॉइंट आप देख सकते हो, मिड पॉइंट से वर्टेक्स टू मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को मीडियन कहा जाता है. ये मिड पॉइंट है, इस चीज को याद रखना है, मिड पॉइंट. और वर्टेक्स से ये भी स्टार्ट होता है, वर्टेक्स से ये भी स्टार्ट होता है, बट दिस इज द मीडियन. दिस इज द मीडियन बिकॉज द E एंड F इज द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट का मतलब एकदम से बीच में. और एल्टीट्यूड को कैसे समझेंगे?
This is line joining the vertex and just perpendicular to opposite side. यहां पर ये परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो इस लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे एल्टीट्यूड. Similarly, this AC is the opposite side of vertex B, but this is making angle 90 degree. तो यहां पर ये भी आपका क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा. तो यहां पे याद रखना है दिस इज द मिडिल पॉइंट. इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल का यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि ये इक्वल हो सकते हैं, इक्वल नहीं. यस ऑफ कोर्स दिस, अगर यहाँ पे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं तो ये सभी एल्टीट्यूड और मीडियन सब इक्वल आ जाएंगे. लेकिन अगर ये ट्रायंगल डिफाइंड नहीं है देन वी कैन नॉट से दैट दीज आर इक्वल. वो इक्वल नहीं हो सकते हैं, केवल एक ही कंडीशन पे इक्वल होंगे, व्हेन यू विल टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे तो ये सभी आपके इक्वल हो जाएंगे. लेकिन मीडियन कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, और इसी तरह से एल्टीट्यूड भी इक्वल नहीं होते हैं. अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ इस ट्रायंगल में एडी मीडियन है या फिर ये एडी एल्टीट्यूड है, तो आपको दो ही चीजें देखनी है. if this is the midpoint then you can say that yes sir this is median, and if this making angle 90 degree then you can say that sir it is altitude. ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है. अगर एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप कहोगे इट इज एल्टीट्यूड, और अगर मिड पॉइंट से ये लाइन ज्वाइन हो रही है तो आप कहोगे दिस इज मीडियन. और अब आपको ये भी क्लियर हो गया, एवरी ट्रायंगल हैव हाउ मच मैक्सिमम मीडियंस 3, एंड हाउ मेनी मैक्सिमम एल्टीट्यूड, अगेन 3. तो ये 3 होते हैं, किसी भी ट्रायंगल में 3 से कम भी नहीं हो सकते और 3 से ज्यादा भी नहीं हो सकते. ठीक है, तो चलिए आज का हमारा कॉन्सेप्ट इतना ही है. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 में. 6.1 बहुत आसान एक्सरसाइज है और यहाँ पे बहुत आसान ही क्वेश्चन दिए हुए हैं. एंड दिस इज पॉइंट P, this is point Q, and this is point R. Okay, and here is two lines is given also. One is just here making angle 90 degree, and this is the midpoint, that is point D, and this is point M. Okay, question says that in triangle QR, in triangle PQR, and D is the midpoint of QR. This is the line segment, this is the symbol of line segment, so QR, and here is first one, PM is yes. So can you say that yes, right? Okay. And next one is PD is, PD क्या है? Yes, of median. And next question is QM equal to MR. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, QM इक्वल टू MR नो, क्योंकि ये यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं है तो ये इक्वल नहीं होगा. तो आप यहाँ पे लिखोगे नो, QM इज इक्वल टू MR, ये इक्वल नहीं होगा. ठीक है, सो
दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप यहाँ पे लिख सकते हो कौन सा ट्रायंगल है, और ट्रायंगल क्यू आर, तो यहाँ भी लिख सकते हो आप ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। आपको रफ स्केच का मतलब क्या होता है? रफ स्केच मीन्स यू विल ड्रॉ इफ नीट एंड क्लीन डायग्राम विदाउट एनी मेजरमेंट, उसको हम बोलते हैं रफ स्केच। तो एक सुंदर सा डायग्राम बनाना है और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया है ए नंबर, in triangle ABC BE is median. A triangle ABC and BC is median. तो आपको कोई भी डायग्राम बना देना है। लेट अस दिस इज ट्रायंगल ABC। हमने एक ये ट्रायंगल बना दिया ए, हाँ ए, सॉरी, यहाँ पे BE है तो यहाँ पे BE कर लेते हैं। BE इज द मीडियन। और इधर में आपका ये पॉइंट सी है, तो सी। अब देखिए ये आपका मिड पॉइंट यहाँ पे ढूंढ लेना है। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आप ध्यान से देखिए, बी से स्टार्ट होना चाहिए, बी ई। सो दिस इज स्टार्ट फ्रॉम बी। तो यहाँ पे मिड पॉइंट आपको ढूंढना है, दिस इज द मिड पॉइंट, और इसको आप ज्वाइन करेंगे, देन यू विल गेट द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल। सो द आंसर इज कंप्लीट। इतना ही करना था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर आपसे कहा गया इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। फॉर क्वेश्चन नंबर बी, बी के लिए आपको कहा गया ट्राइंगल पी क्यू, आ गया ना? यस। और आपसे कहा पी क्यू एंड क्यू आर एल्टीट्यूड। हाँ, यस, बिल्कुल सही बता रहे हो। तो देखिए इसको आप कैसे, इस तरह से बनाना पड़ेगा। सी हियर, दिस इज ट्राइंगल पी क्यू एंड आर। आप यहाँ पे इसको यहाँ कहीं भी लिख सकते हो, आर यहाँ लिख सकते हो या यहाँ पे क्यू लिख सकते हो। नाउ यू कैन सी दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। Then in this triangle PR, this is the altitude. Why? Because this is making angle 90 degree. And PQ is also altitude. Why? Because this is making angle 90 degree. और ये ट्राइंगल कौन सा है? दिस इज जस्ट PQR। तो ये भी एल्टीट्यूड होगा आपका, दिस इज एल्टीट्यूड, एंड दिस वन इज ऑल्सो एल्टीट्यूड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद आपको थर्ड पार्ट दिया सी, एक्स वाई जेड एंड वाई एल इज ए एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो इसको आपको एक्सटीरियर में बनाना है। सो हियर पार्ट नंबर सी इज गिवन दैट triangle XYZ, and here is YL is the altitude of triangle XYZ। तो देखिए इस बार आप पहले XYZ ट्राइंगल बना लेंगे। तो देखिए मैंने ये ट्राइंगल बना दिया आपका इस तरह से, कोई भी, and this is triangle naming X, Y and Z।
नाउ वी वांट टू वाई एल इज द एल्टीट्यूड, तो हमको क्या करना है, हम यहां से इसको एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटीरियर बोला गया ना, तो यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एंड दिस इंटरसेक्शन इज नॉन एज एल, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट एल हो जाएगा। एंड हाउ मच मेकिंग एंगल दिस 90 डिग्री। सो दिस वाई एल इज नॉन एज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो आप फाइनली लिखोगे वाई एल इज एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए एक्सटीरियर बोला गया, एक्सटीरियर का मतलब है आउटसाइड ऑफ दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर। तो देखिए हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनाएंगे, अगर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनाएंगे तभी ये एक्सटीरियर में मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे ये वाई एल एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन 3 दैट इज वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस ट्रायंगल कैन बी सेम। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है कि किसी भी आइसोस ट्रायंगल में गिवन दैट एन आइसोस ट्रायंगल okay, and now here we will draw a isosceles triangle। मैंने ये isosceles triangle इस तरह से बना लिया, इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। एंड द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज ए बी सी, ओके। एंड आफ्टर दैट वी विल टेक द मिड पॉइंट ऑफ दिस बी सी। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया, इसका नाम लिखा डी एंड ज्वाइन इट, ओके। सो डियर व्हाट टू डू, you will write here a triangle, let a triangle ABC in which AB equal to AC। अगर आपका ये आइसोस ट्राइंगल है तो इसमें दो साइड कंपलसरी इक्वल होंगी, तो यहाँ पे हमने लिया ए बी और ए सी इक्वल साइड है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए क्या करना है, ड्रॉ इट्स मीडियन। तो हमने क्या किया, नाउ ड्रॉ इट्स मीडियन एडी, ये मिड पॉइंट है तो हमने मीडियन एडी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मेजर एंगल। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे। नाउ मेजर द एंगल, एंगल कौन सा मेजर करेंगे, एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल हम मेजर करेंगे कि कितने डिग्री का है, ओके। देन व्हाट टू डू, व्हाट वी फाइंड हियर, वी विल गेट, we get here angle ADB 100%, this is 90 डिग्री। जब भी आप इसे मेजर करोगे तो ये 90 डिग्री ही होगा, इससे कम भी नहीं हो सकता और ज्यादा भी नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, यस यू कैन राइट हियर देयरफॉर, अगर ये 90 डिग्री है देन यू कैन से दैट what AD is perpendicular to किस पर है, BC पर, ये BC पर हो गया। Hence BC is the median as well as altitude of triangle ABC। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यस 10, इसी तरह से आप बता सकते हो 10
AD is the median as well as it is altitude. तो इस तरह से आप इसे वेरीफाई कर सकते हो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्योंकि हमने यहां पे क्या किया था, मीडियन ड्रॉ किया था। मीडियन का मतलब ये साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। तो अब आप देखोगे कि ये मीडियन है, फिर हमने प्रोटेक्टर से इसको मेजर किया तो 90 डिग्री आ गया। और अगर ये 90 डिग्री आ गया तो हम इसे क्या कह सकते हैं, दिस इज एल्टीट्यूड। क्योंकि 90 डिग्री अगर कोई भी साइड बना रही है तो वो हमेशा एल्टीट्यूड होता है। तो एल्टीट्यूड अगर 90 डिग्री बना रहा है तो AD इज द एल्टीट्यूड and AD is the median. So we can say that AD is the median as well as an altitude of triangle ABC. तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज ओवर हो गया। ठीक है, तो अभी इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या क्या चीज सीख लिया। ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं, मीडियंस कितने टाइप्स की होती है, क्या होती है, इसके बाद हाँ एल्टीट्यूड कितने टाइप्स के होते हैं, और हाँ अब हम लोग प्रॉपर्टीज के विषय में चलेंगे। अभी तक तो हमने ट्राइंगल और इसके मीडियन एल्टीट्यूड को सीखा। अब हम प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे इसके आगे। प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल है। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।